गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय 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 ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौ प्रेमानंद है। (21) SB 2621। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। So we're going to read from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 6, Purusha Shukta confirmed, text number 21, and we'll read the balance of the part of 20. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shruti Vichakrame Vishwan Shashananashane Ube Yad Avidya
चा विद्या छा पुरुषस्तुभ्ययाश्रयः श्रुतिविचक्रमे विश्वन् शासनासने उभे यद्विद्या च विद्या च पुरुषस्तुभ्याश्रयः श्रुतिविक्रमे विश्वन् शासनासने उभे यद्विद्या च विद्या च पुरुषस्तुभ्याश्रयः श्रुतिविक्रमे विश्व शासनासने उभे यद्विद्या च विद्या च पुरुषस्तुभयाश्रयः श्रुतिविक्रमे विश्वान् शासनासने उभे यद्विद्या च विद्या च पुरुषस्तुभयाश्रयः श्रुतिविक्रमे विश्वन् शासनासने उभे विद्या च विद्या च पुरुषस्तुभयाश्रयः श्रुतिविक्रमे विश्वन् शासनासने उभे यद्विद्या च विद्या च पुरुषस्तुभयाश्रयः Shruti, the destination of the living entities, Vichakrame, exists comprehensively. Viswan, the all-pervading personality of Godhead. Shasana, activities of lording it over. Anasane, activities in devotional service. Ube, both. Yat, what is. Avidya, nescience. Cha, as well as. Vidya, factual knowledge. Cha, and. Purusha, the Supreme Person. Tu, but. Ubhaya, for both of them. Ashraya, the Master. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. By his energies, the all-pervading personality of Godhead is thus comprehensively the master in the activities of controlling and in devotional service. He is the ultimate master of both nescience and factual knowledge of all situations. सुंदर से ब्रह्मा जी समझाते हैं कि भगवान के शक्ति के माध्यम से बाय हिज एनर्जी जो सर्वव्यापक पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है वो कॉम्प्रिहेंसिवली मास्टर ऑफ सब एक्टिविटी कंट्रोलिंग एक्टिविटीज एंड डिवोशनल सर्विस. कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एकदम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन है, मतलब कि हम लोग कोई एंगल छोड़ा नहीं, सब एंगल से हम लोग चर्चा कर लिया. तो रकम से भगवान कोई एंगल से छूटे नहीं है. ही इज द अल्टीमेट मास्टर ऑफ बोथ nescience, अज्ञानता अविद्या के भी मास्टर है और विद्या के भी मास्टर है. भगवान बोले क्या भगवद गीता में, हाँ, मता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा. सो ही इज ऑल्सो forgetfulness. But the word Vishwan is significant in this verse. One who travels perfectly in every field of activity is called the Purusha or Kshetragya.
These two terms, Kshetragya and Purusha, are equally applicable to both the individual self and the super self. The Lord. In the Bhagavad Gita 13.3, the matter is explained as follows. Kshetragyam chapi mam vidhi sarva kshetreshu bharata kshetra kshetragyor jnanam yattaj jnanam matam mama. Kshetra means the place, and one who knows the place is called Kshetragya. The individual self knows about his limited field of activities, but the Supreme Self, the Lord, knows about the unlimited field of activities. The individual soul knows about his own thinking, feeling and willing activities. But the Super Soul or the Paramatma, the Supreme Controller, being present everywhere, knows everyone's thinking, feeling and willing activities. And as such, the individual living entity is minute master of his personal affairs, whereas the Supreme Personality of Godhead is the master of everyone's affairs, past, present and future. Vedaham samitaitani, etc. Only the ignorant person does not know this difference between the Lord and the living entities. The living entities, as distinguished from the incognizant matter, may be qualitatively equal to the Lord in cognizance, but the living entity can never be equal to the Lord in full knowledge of past, present and future. तो श्रील प्रभुपाद जी फर्स्ट थिंग समझाते हैं हम लोग को कि भगवान के यहाँ पे बिकॉज बात आया है कि मास्टर ऑफ बोथ नी साइंस एंड फैक्चुअल नॉलेज और कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर है इन ऑल एक्टिविटीज़. तो प्रभुपाद जी फर्स्ट वर्स इसको एलोबरेट करने के लिए पिक किया भगवद गीता 13.3. तो भगवद गीता में बताते भगवान कहते हैं कि अर्जुन को बोलते हैं कि क्षेत्रज्ञ सर्व क्षेत्रज्ञ. तो प्रभुपाद जी बोले हम लोग के लिए अपन बॉडी के थिंकिंग फीलिंग विलिंग जान पाता है, दूसरा के हम लोग नहीं समझ पाएगा. भगवान सब लिविंग एंटिटी के जाने, और केवल उतना नहीं, भगवान पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर भी जाने. हम लोग अपन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी बराबर नहीं जान पाता, मुख्य यही लाइफ में जानता है, वो भी थोड़ा जानता है. सब हम लोग के नहीं याद है. हमें तो नहीं याद है कि हम आदमी लोग कहीं बोले हम लोग छोटा रहा इसे करते थे, तो हमें बहुत ढेर चीज़ नहीं याद है कि तो वो भी सिचुएशन है. नहीं तो अदरवाइज फ्यूचर भी हम लोग नहीं बहुत अच्छा से जान पाता. हम प्लान बनाता है लेकिन कौन सी रिली में कर हुई हम लोग नहीं परफेक्टली जान पाता ना. तो दिस इज सो स्पेशल अबाउट कृष्णा कि कृष्णा सर्व क्षेत्रज्ञ है. कृष्णा नॉज. तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेगा तो प्रभुपाद जी बोले ओनली द इग्नोरेंट पर्सन डज नॉट नो दिस डिफरेंस बिटवीन द लॉर्ड एंड द लिविंग एंटिटीज. कितना सिंपल है. और यहाँ हम लोग देखता संसार में आदमी सब भगवान मालिक बने मांगे, और कोई जन के मालिक बने के मूर्खता इतना हो जाए है कि फिर एक्चुअली में वर्शिप के लेवल पे चल दे, अपने आप के भगवान डिक्लेयर कर दे. कोई साधु संत लोग ने थोड़ा चमत्कार करे फिर तो इग्नोरेंस के मुझसे देख सकता है कितना हद हो जा सके. तो प्रभुपाद जी बोले हम लोग बोले द लिविंग एंटिटी इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम इनकॉग्निजेंट मैटर. भगवान कॉग्निजेंट है, भगवान सब कुछ जाने, हम लोग इनकॉग्निजेंट है, हम लोग नहीं सकता जाने सब चीज़. तो क्वालिटेटिवली हम लोग भगवान के रकम है, तभी आदमी के इंटरेस्ट है सब चीज़ मांगो जानो. तो भगवान सब चीज़ जाने तो हम लोग जानता सब चीज़ जाने, बट प्रभुपाद बोले हम लोग इक्वल नहीं है ना. क्वालिटेटिवली है बट हम लोग इक्वल नहीं. एंड बिकॉज द लिविंग एंटिटी इज पार्शली कॉग्निजेंट, he is therefore sometimes forgetfulness of his own identity. This forgetfulness is specially manifested in the field of Ekapad Vibhuti of the Lord or in material world. But in the Tripad Vibhuti field of actions or in spiritual world, there is no forgetfulness of the living entity who are free from all kinds of contamination resulting from the forgetful state of existence. तो हम कल जीवना तो वो पढ़ी सरा ना, यहाँ पर पद मेंशन करी सरा कि मटेरियल वर्ल्ड इज 1/4 ना, तो इसीलिए इसके एक पद विभूति भगवान की विभूति है. विभूति मतलब भगवान के ऑपुलेंस है ना. हाँ, इससे मुझे याद आता ना, हम लोग संसार में इसे ना आदमी कहीं मंदिर जाए कोई जगह बोले विभूति मिली हमें ना थोड़ा से एशेस. तो यहाँ तो भगवान की विभूति भगवान के ऑपुलेंस है.
तो मटेरियल वर्ल्ड इज एक पद विभूति और स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज त्रिपद बिकॉज इज थ्री कोटेस ना। तो प्रभुपाद जी बोले फॉरगेटफुलनेस जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है, और फॉरगेटफुलनेस मटेरियल वर्ल्ड में है। और मटेरियल वर्ल्ड में क्या है फॉरगेटफुलनेस है? बिकॉज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ कॉन्टिमिनेशंस। जब फॉरगेटफुल रहे तो हम लोग कॉन्टिमिनेटेड हो जाता है। फॉरगेटफुल हम हो जाता है कृष्णा के तो हम लोग सोचता है हम लोग भोग करे के है, हम कृष्णा के सुप्रीमेसी भुला जाता है तो हमको लगे हम लोग लोडिंग इट ओवर मटेरियल नीचे ना। तो the material body is the symbol of the gross and subtle form of forgetfulness. The material body is the symbol of gross and subtle form of forgetfulness. तो हम लोग के आकार ही material body ही symbol है forgetfulness के ना। Therefore, the whole atmosphere of the material world is called avidya or nescience, whereas the whole atmosphere of the spiritual world is called vidya or full of knowledge. There are different stages of avidya and they are called dharma, artha and moksha. There are different stages of avidya and they are called dharma, artha and moksha. The idea of moksha or liberation held by the monist in the matter of oneness of the living entity and the Lord by ultimate merging in one is also the last stage of materialism or forgetfulness. ब्यूटीफुल प्रभुपाद जी कितना सुंदर से डिस्क्राइब करे ना, एकदम एकदम क्लैरिटी कि फॉरगेटफुलनेस जो है एक्चुअली में यस्टरडे वी आर रीडिंग दिस वर्स एट द प्रोग्राम भागवतम में जो दिया है कौन सा वर्स, सवै पुंसाम परो धर्मो। तब से ऑर्डिनरी धर्म भी फॉरगेटफुलनेस में क्लासिफाई किया गया बिकॉज सवै पुंसाम परो धर्मो इज यथो भक्ति रधोक्ष। सो दैट विच डज नॉट अवेकन the loving devotional service on the supreme personality of God is technically देखा जाए वो धर्म नहीं है। हम लोग धर्म के लिए सोचता है सब पूजा पाठ अगरबत्ती करो दिया करो ऐसा, बट somebody can be doing all the worship thing for पूरा लाइफ और एंड में भगवान के लविंग डिवोशनल सर्विस नहीं जागृत हुए तब तो फॉरगेटफुलनेस होगी। जागरण के मतलब है कि अंत काले चमा में बा ना, तो वी मस्ट बी एबल टू रिमेंबर कृष्ण। और केवल अंत नहीं, हम लोग ये लाइफ में ही जब स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करे लगेगा कृष्णा के क्लोज हो तो वही लाइफ में चलते फिरते हम लोग भगवान के याद करते रहे। द डिवोटी even the devotee is going to work, even the devotee is doing some gardening, even the devotee is cleaning the house, even the devotee is chanting japa, even the devotee is taking care of others. They are all, devotee does everything in relation to, everything is for the pleasure of Krishna. Everything is for the pleasure of Krishna. So yes, last Sunday we had a class in Sori Center and we discussed this point कि devotional service के aim है pleasure of Krishna. So we are chanting, we are not chanting, we are कभी कभी devotees लोग अलग अलग वस्तु भी करे हैं, तो हम लोग कौन सी करता है एक्चुअली में प्योर डिवोशनल सर्विस। और डिवोशनल सर्विस में ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि अभी हम लोग on the platform of Bhagavad Gita बोले यत करोसी यत यजनासी यत दुहोसी ददासी यत, whatever we do, whatever we eat, whatever we give in charity, we do it as an offering unto Krishna. But by 18th chapter, Krishna, what does Krishna want? Sarma dharman pariteja. Krishna wants we leave everything and we start thinking of or start acting on Krishna's interest. अभी हम लोग प्रसाद बनाया तो बोला कौन सी खाएगा और जब प्योर डिवोशनल सर्विस में हो जाएगा then we are always thinking, oh, we did paneer for Krishna yesterday, let us do something different for Krishna. Yes, looking at, so ultimate pure devotional service के simple one line है हम लोग बोलेगा, devotee works for the pleasure of Krishna. So one who works for the pleasure of Krishna is a pure devotee. तब ऐसे प्रभुपाद जी श्रील गुरुदेव के बोली साहब, when Gurudev asked him how many pure devotees on the planet, Prabhupada said how many members in ISKCON. और technically my puppet on Prabhupada's puppet is कि actually when Prabhupada was physically present or the early days of the movement, everyone was focused on simply pleasure of Prabhupada and Krishna. अभी तो हम लोग थोड़ा ढेर चीज एंटरटेन करे लगा है ना, we want to power up with the society ये चीज ऑब्जर्व करे तो हम लोग भी ऐसे नहीं करेगा तो आदमी हम लोग के ही नहीं करी ऐसे नहीं ना। तो we should be very careful because थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या हो जाए, चाहे हम लोग, मैं देखा हूँ with all due respect, it's nice devotees have read widely, that's very nice, but actually में
जैसे कलयुग में खाली चांटिंग महाप्रभु दी से, वही रकम अगर एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स देखेगा तो भागवतम एंड भगवद गीता इज translated in Bhakti by Srila Prabhupada actually gives the essence of all the scriptures. तो तबे से कभी कभी क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा रकम स्क्रिप्चर मांगता, हम लोग के प्रभुपाद ऑलरेडी दे दी से, फिर हम लोग मतलब उसके सपोर्टिंग थोड़ा और यहाँ से भी प्रभुपाद के जितना सपोर्ट लेवे करा प्रभुपाद सब पुराण श्रुति स्मृति सब प्रभुपाद कोट कर दी से। तो कभी कभी हम लोग एक्स्ट्रा में जब जाएगा तो कौन सी हम लोग के भक्ति सके ज्ञान मिश्र भक्ति हो जाए, या तो अगर हम लोग कर्म कांड ऑब्जर्वेंसेस करे लगेगा तो हम लोग के भक्ति कर्म मिश्रा भक्ति हो जाए, इट विल बिकम टिंज विद ऑल दिस थिंग। तो यहाँ तो प्रभुपाद जी सुंदर से बता दिया द डिफरेंट, इट इज फॉर्म ऑफ अविद्या। अर्थ तो इजी है, सके फॉर्म ऑफ अविद्या हम लोग समझ जाएगा ना, व्हेन यू गेट मटेरियल ऑपुलेंस, हम लोग अपन सेंस ग्रेटिफिकेशन में तो डेफिनेटली। फिर प्रभुपाद जी बोले मोक्ष इज ऑल्सो अविद्या, मोक्ष ऑफ द टाइप वेयर people want to go and merge into Krishna, that is actually avidya. हम लोग भगवान के इटर्नल सेपरेटेड पार्ट एंड पार्सल है, तो भगवान में लीन होएला बात इज अविद्या। आदमी सोचे कि हम भगवान में लीन हो जाएगा देन आई विल बी रिलीफ ऑफ माई कृष्णा मटेरियल सिचुएशन, बट हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, महाप्रभु चैतन्य चेतना में डिस्क्राइब करे कि जीवेरा स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। हम लोग वी आर ऑलवेज इटर्नल सन। तो कभी कभी हम लोग भक्ति की, कभी कभी डिवोटीज स्पिरिचुअलिस्ट लोग हैं, वो लोग डिसाइड करें वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग, वी जस्ट बिकम वन विद कृष्ण। तो भागवतम डिस्क्राइब करे दिस इज अविद्या, दिस इज इग्नोरेंस। डिवोटीज मीन्स एक्टिव डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद जी साहब आपकी एक्टिव डिवोशनल सर्विस है, मॉर्निंग प्रोग्राम, भागवतम क्लास, सेवा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हरिनाम प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, डीटी वर्शिप, renewing every preaching activity, everything is active devotional service. तो फिर आगे बताया knowledge of the qualitative oneness of the self and the super self is partial knowledge and ignorance also because there is no knowledge of quantitative difference as explained above. Very nice, very beautifully said. प्रभुपाद जी कितना फाइन डिफरेंस देवे। प्रभुपाद बोले कि नॉलेज है, क्या नॉलेज है कि अगर कोई समझ जाए कि हम लोग भगवान के क्वालिटेटिवली वन है, तो कोई स्पिरिचुअल पाथ है वो हम लोग के समझाए कि हाँ हम लोग और भगवान के सेम गुण है, लेकिन खाली इतना समझ के फिर क्वांटिटेटिव डिफरेंस कि भगवान विशाल है और हम लोग केवल माइन्यूट पार्ट है, ई नॉलेज नहीं है, तो वननेस भी जान के इग्नोरेंस है। तो वैसे पार्शल, कंप्लीट नॉलेज इज क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव डिफरेंस, दोनों हम लोग समझेंगे। क्वालिटेटिवली वी आर वन विद कृष्णा, क्वांटिटेटिवली कृष्णा इज ग्रेट एंड वी आर सिंपली माइन्यूट। द इंडिविजुअल सेल्फ कैन नेवर बी इक्वल टू द लॉर्ड इन कॉग्निजेंस, otherwise he could not be placed in the state of forgetfulness. तो हम लोग भगवान के रकम सब चीज, सब क्षेत्र ज्ञान नहीं हो पाता है, नहीं जानता है। अगर हम वो रहता वैसे तो हम प्रभुपाद बोले हम इग्नोरेंस में नहीं रहता। और द लिविंग एंटिटी there is always a gulf of difference between the Lord and the living entity as between the part and the whole. The part is never equal to the whole. So the conception of 100% equality of the living entity being with the Lord is also nescience. In the field of nescience, activities are directed toward lording it over the creation. In the material world, therefore, everyone is engaged in acquiring material opulence to lord it over the material world. Therefore, there is always clash and frustration, which are the symptoms of nescience. तो प्रभुपाद जी बोले कि अज्ञानता की एक्टिविटी कैसे रही, अज्ञानता में एक्टिविटी विल बी डायरेक्टेड टू लोडिंग इट ओवर मटेरियल नेचर। मैं कल एक व्यक्ति से बात कर रहा था, वो मेरे साथ में चर्चा कर रहा था, बता रहा था कि कैसे संसार में अपना बिजनेस में वो मेहनत किया, और यूजुअली एक्सप्रेशन हम लोग क्रिएट करते हैं ना, एक्सप्रेशन में क्या बोलते हैं, ये हम लोग इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करा, इतना बड़ा राज खड़ा करा, मतलब कि
टू लॉर्ड इट ओवर ना, आई एम द बॉस। तो प्रभुपाद जी बोले कि ये हम लोग के नेचर है। और इसके रिजल्ट क्या है? इसके रिजल्ट है therefore there is always clash and frustration। हम लोग देखता है अभी तो कलयुग में तो पहले हम लोग क्लैश और फ्रस्ट्रेशन देखता रहा क्या, कि एक फैमिली में ढेर जायदाद एसेट एम्पायर बन जाए तो सबसे पहले क्लैश भाई भाई लोग में होने लगे। हम लोग ये स्टेज जनता रहा। अभी कलयुग में और थोड़ा बढ़ गया, अब हम लोग के फाइट माइंड में होने लगा है किसके दई किसके नहीं दई, हम बनाया है कोई ले जाई। तो ये क्लैश एंड फ्रस्ट्रेशन, फिर आदमी फ्रस्ट्रेट है। और फ्रस्ट्रेट है तो कौन चीज है? हाउ डज फ्रस्ट्रेशन कम अबाउट? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन कमिंग अबाउट? Desires fulfilled, right? The process is that we keep thinking about it। तब तो फ्रस्ट्रेशन हो लगे ना, फिर ऐसे होते होते हम ब्लो अप हो जाता है। तो जब हम लोग मटेरियल लोडिंग इट ओवर के बारे में सोचते रहेगा तो फ्रस्ट्रेशन है जी। जब हम लोग कृष्ण के बारे में नहीं सोचेगा तो फ्रस्ट्रेशन है जी। तो तबे से हम लोग के वैदिक प्रोसेस है, वैदिक सभ्यता है या वैदिक सिस्टम है। अगर हम लोग योगा प्रोसेस भी देखेगा या तो पीपल बोली कि हम लोग मेडिटेशन के देखेगा, कौन सी है? माइंड में जो थिंकिंग प्रोसेस है उसके कृष्ण कॉन्शियस करेंगे, कृष्णमय करेंगे। जो कृष्णमय नहीं करेगा तो फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि माइंड में सोचता है लोडिंग इट ओवर, इट शुड हैपन द वे आई वांट इट, देन यू बिकम फ्रस्ट्रेटेड। वी शुड वेरी क्लियरली नो। प्रभुपाद जी अमेरिका जाता रहा, प्रभुपाद जी वर सफरिंग ऑब्स्टेकल्स ऑन हिज पाथ। Prabhupada said, Krishna, make me dance as you want. These are all very nice symptoms of surrender that Krishna will always put us through. Krishna सब devotee के all the time he se put through करते रहे। The other day I was telling Rashmi, the big boss, he gives us so much challenges in different ways. He gives us success, we become very happy, then he throws in one challenge. Why does he throw in a challenge? So that you have anxiety. What should the anxiety be about? How do I make this service of Krishna possible? प्रभुपाद के टाइपराइटर चोरी हो गए, प्रभुपाद के मैन्युस्क्रिप्ट चोरी हो गए। Then it gives more intense desire to make it happen because this is Krishna's service. Like that. So that's Prabhupada. हम लोग एक दफे लिखेगा, हम लोग एक दफे व्यास पूजा ऑफरिंग लिखता, अगर हराई गए कंप्यूटर में से लॉस्ट हुए फिर अच्छा रान तो नहीं सकता लिखे फिर से, लेकिन प्रभुपाद डिड इट। तो बट इन द फील्ड ऑफ नॉलेज देयर इज डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड व्हिच इज कॉल्ड भक्ति। Therefore there is no chance of being contaminated by the influence of nescience or forgetfulness, avidya, in the liberated stage of devotional एक्टिविटीज। तो बोले जब डिवोशनल स्टेज, लिबरेटेड स्टेज ऑफ डिवोशनल एक्टिविटीज क्या होगा? हाउ विल यू डिस्क्राइब द लिबरेटेड स्टेज? वेरी सिंपल। लिबरेटेड स्टेज मतलब you always know Krishna is the supreme personality of Godhead, we are spirit, minute spirit souls, and our activities is to serve for the pleasure of Krishna। ये लिबरेटेड डिवोटी यही सोचता है और दूसरा कुछ नहीं सोचता। लिबरेटेड डिवोटी के ऐसे नहीं है कि सब सर के बाल गिर जाए या तो फिर हेड के पीछे से हम लोग देखेगा लाइट निकले लगा है सिट ऑन द व्यास असर और आपके लगे लाइट निकले, तब वो दिन आप जान जाना कि I might put a bulb behind this and switch it on every time I come here। Liberated devotees कभी भुलाए नहीं है कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, कभी भुलाए नहीं है कि हम लोग माइन्यूट पार्ट एंड पार्सल है कृष्ण के, और कभी भुलाए नहीं कि हमारा एवरी एक्टिविटी इज फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। तो कृष्ण के प्लेजर के वास्ते सब कुछ है। तो द लॉर्ड इज दस द प्रोप्राइटर ऑफ द फील्ड्स ऑफ बोथ द nescience and of cognition, and it remains the choice of the living entity to exist in either of the above reasons। So Krishna again, after describing everything, Krishna expresses his love। कृष्णा अपन प्रेम हम लोग के देवे है, एवरी डे कृष्णा हम लोग के प्रेम देवे अपन, एवरी डे कृष्णा लव्स अस। हाउ डज कृष्णा लव अस एवरी डे? बाय गिविंग अस फ्रीडम ऑफ चॉइस। कृष्णा हम लोग के प्रेम कभी लेवे नहीं है, तो कृष्णा दोस्ती डिस्क्राइब कर दे, फिर चॉइस हम लोग के दे दे, चॉइस हम लोग के दे। तब ऐसा इंटेलिजेंट डिवोटी, all devotees are intelligent, but particularly when we are discussing in the context of
liberated soul or who is very intelligent person always remembers, chooses the right thing to do. And what is the right thing? Anything, accept everything favorable for Krishna, reject everything unfavorable for Krishna, always know that Krishna is the protector and the maintainer, always depend on Krishna's mercy, and always remain meek and humble. So this becomes 6 points of surrender. So surrendered devotee is the best devotee who knows how to make choices for his freedom, how to use his freedom. So this is verse 21. I'll just complete the purport of 20. It was a long purport, so we discussed halfway. So, yes, so the third paragraph now. So third paragraph, so 20, the verse was, the spiritual world, which consists of 3/4 of the Lord's energy, is situated beyond the material world. And it is specially meant for those who will never be reborn. Spiritual world kiske वास्ते है? जो never reborn रही. They will not come back. Others who are attached to family life and who do not strictly follow celibacy vows must live within the 3 material world. तो जब celibacy vows हम लोग नहीं follow करता है, celibacy vows means, हम लोग generally जानेंगे celibacy means ब्रह्मचार्य. जो expression of lust है, वो एक्चुअली में an expression of loading it over material nature है. तब से यहाँ पे बहुत हाई लेवल से डिस्क्राइब किया है. Who do not strictly follow celibacy vows must live within the 3 material worlds. Very simple. तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखे है, the householders and persons who have deliberately broken the vow of celibacy cannot enter into the kingdom of deathlessness. तब इसे धर्म के जो 4 पिलर्स है, उसमें से सिलेबसी एक इम्पोर्टेंट पिलर है. और सिलेबसी के पावा जो है, जानो जैसे स्पेस क्राफ्ट के स्पेस में ले जाए के वास्ते बहुत तेज पावा मांगे तब वो धरती छोड़ के ऊपर उठे. फोर्स नहीं रही तो उठी नहीं. तब है हाँ, थ्रस्ट नहीं रहे तो प्लेन उठे. तो स्पिरिचुअल लाइफ के थ्रस्ट जो है वो सिलेबसी है. एंड रियली में तबे से सब क्या करे, सब साधु संत लोग या तो ब्रह्मचारी लाइफ के या तो साधु संत लोग भी चले जावे. तो फॉलोइंग द वाव से प्रभुपाद जी बोले प्योरिटी इज द फोर्स. तो सिलेबसी ऑफ द बॉडी, सिलेबसी ऑफ द माइंड, सिलेबसी ऑफ द थॉट प्रोसेस, सिलेबसी ऑफ सरेंडर. तब इसे अगर हम लोग जानो वही सतीतला बात हो जाना, इफ अ वाइफ इज नॉट लॉयल टू द हस्बैंड, शी इज नॉट चेस्ट वाइफ. तो वही रकम हम लोग अगर हम लोग के सिलेबसी वाव है टू बी एब्सोल्युटली सरेंडर्ड टू कृष्णा, एंड वी मस्ट वेरी क्लियरली नो वी डोंट नीड टू वर्शिप एनीथिंग एल्स. तभी से आई गेट, हमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल लगे चैतन्य चेतामृत के. वो चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्ता को बोला था ना कि सरेंडर टू द सर्विस ऑफ कृष्णा. Murari Gupta cried the whole night. He said, I cannot leave the worship of Ram. तो आचार्य लोग समझाते हैं कि even at the highest level of loyalty and dedication and chastity, जो इष्ट फॉर्म है कृष्ण का, विष्णु तत्व का जो इष्ट फॉर्म आपका है, उससे भी आप डिविएट नहीं होगा. That's called complete surrender. गोपीज के एग्जाम्पल है. In the Rasa dance, Krishna disappeared, or Krishna then took the form of Vishnu and was standing there. So all the gopis are running around looking for Krishna, and they saw Narayan. They say, Namam Vishnu Padaya, Krishna Padaya. Did you see Krishna somewhere? And Krishna is right standing there in 400 form. Even if it's Vishnu Tattva, they are not interested in any other form than Krishna. Hanumanji is not in. Hanumanji के तन को हार्ट में एक टिंज ऑफ एम्प्टीनेस नहीं है कि हम राम के वर्शिप करता है, अगर कृष्ण के भी थोड़ा टेकी कैसे. दिस इज कॉल्ड लॉयल्टी ऑफ द ईस्ट. इट शुड बी विष्णु तत्व बट एट दैट लेवल. सो सिलेबसी वाव जो है, तो प्रभुपाद जी बोले जो डिलिबरेटली ब्रेक करे, तो जो इग्नोरेंस में ब्रेक करे, अच्छा लोग के हम लोग नॉलेज ट्राई करता देवे के, दे विल ऑल्सो नॉट
इग्नोरेंस में जो ब्रेक करे है वो तो लिबरेट नहीं सके होए, बट जो जान के जो समझे लगा इसके बारे में फिर भी ब्रेक करे तो प्रभुपाद बोले ही कैनॉट एंटर इनटू द किंगडम ऑफ डेथलेसनेस. The pious householders or the fallen yogis or the fallen transcendentalists can be promoted to the higher planets within the material world, 1/4 of the energy of the Lord. But they will fail to enter into the kingdom of डेथलेसनेस. तो हम लोग सकता प्रोग्रेस हो, तब 14 प्लानिटरी सिस्टम में हम लोग प्रोग्रेस हो सकता है. जो जितना स्ट्रिक्टली फॉलो करे उतना ऊपर सके जाए, बट अगर कंप्लीटली नहीं फॉलो करे तो नहीं सके जाए. Abrihad vratas are those who have broken the vow of celibacy. The vanaprasthas or those retired from family life and the sannyasis and the renounced person cannot break the vows of celibacy if they want success of the process. तो प्रोसेस सब टाइम रही लेकिन सक्सेस नहीं हुई, हम लोग ब्रह्मचार्य नहीं पालन करेगा. The brahmacharis, vanaprasthas and sannyasis do not intend to take rebirth, apraja, nor are they meant for secretly indulging in sex life. Such a fall down by the spiritualist may be compensated by another chance for human life in good families or the learned brahmanas or of rich merchants for another term of elevation. तो ये बोले श्रीमताम सुचिनाम गे है क्योंकि डिवोटी फॉल हो जाए. तो हम जनरली सोचता है कि डिवोटी फॉल हो जाए मतलब आत रहा बंद कर दी से, चेंटिंग करता रहा बंद कर दी से. लेकिन विद इन द प्रैक्टिसिंग डिवोटीज जब वाव भी पूरा से नहीं फॉलो करेगा तभी भी इट्स अ फॉल डाउन. तो प्रभु बोले उस सिचुएशन में भी हम लोग श्रीमताम सुचिनाम गेहे प्राप्त करेगा. एटलीस्ट यू गेट बेनिफिट रही कि यू गेट अ सेकंड चांस ऑफ. कोई वैष्णव घर में जन्म हो जाए तो हम लोग भी बाल ब्रह्मचार्य से हम लोग वाव ऑफ सिलेबसी फॉलो करेगा. तो बोले कि but the best thing is to attain the highest perfection of deathlessness as soon as the human form of life is attained. Otherwise the whole policy of human life will prove to be a total failure. Lord Chaitanya was very strict in advising his followers in this matter of celibacy. One of his personal attendants, Chota Haridas, was severely punished by Lord Chaitanya because of his failure to observe the vow of celibacy. For a transcendentalist, therefore, who at all wants to be promoted to the kingdom beyond the material miseries, it is worse than suicide to deliberately indulge in sex life, especially in the renounced order of life. Sex life in the renounced order of life is the most perverted form of religious life, and such a misguided person can only be saved if by chance he meets a pure devotee. तो जब ले प्योर डिवोटी हम लोग के नहीं मिली तो हम ऐसे इंडल्ज करें लाइफ में तो सक्सेस हम लोग इनके नहीं रही. तो प्रभुपाद जी एग्जांपल दिया कि चैतन्य महाप्रभु के एक डिवोटी अटेंडेंट रहा, मतलब सेवक रहा चैतन्य महाप्रभु के, छोटा हरिदास, नॉट दी बड़ा हरिदास. बड़ा हरिदास इज नाम आचार्य, छोटा हरिदास. तो वन टाइम दे वर गोइंग इन हरिनाम संकीर्तन, दे वर गोइंग, सो देन छोटा हरिदास सो अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन. तो कभी कभी ऐसे होता ना, हम लोग हरिनाम संकीर्तन में जाता है, डिवोटी खाली क्राउड में चले, कोई गाय वाय नहीं है, इधर उधर ताके सब चीज करे. तो अभी नेक्स्ट हरिनाम आयला है नेक्स्ट वीक सैटरडे के, जो लोग हरिनाम करे तो केयरफुल हो जाओ. इधर उधर हरिनाम, हम हरिनाम जाता लेकिन इधर उधर तकता है तो कौन सी फायदा है. तो छोटा हरिदास ऐसे तकता रहा तो ही सो वेरी ब्यूटीफुल वुमन, और उसके माइंड अट्रैक्ट है. चैतन्य महाप्रभु इमीडिएटली जान गए. फिर चैतन्य महाप्रभु उसके अपन एसोसिएशन से निकाल. ही क्राइड, ही बेग्ड, मेसी, सब चीज करे, लेकिन महाप्रभु नहीं एक्सेप्ट. तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पट है. जीवनाथ प्रभु तो मांगा था पूरा कंप्लीट कर देगा. स्ट्रिक्ट डिवोटी, स्ट्रिक्ट जीवनाथ प्रभु स्ट्रिक्ट है तो उसके स्ट्रिक्ट से बोले, हम बहुत बोल नहीं पाता स्ट्रिक्ट से. बट पॉइंट प्रभुपाद जी देखो, नो कॉम्प्रोमाइज. प्रभुपाद जी बोले सब डिवोटी के जानना चाहिए ना. तो जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे माइंड में आया ना, तो नॉन डिवोटीज है दैट कंप्लीटली डोंट नो अबाउट रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स. तो फर्स्ट स्टेप है कि वी मस्ट गाइड पीपल टू एक्ट विद इन गृहस्थ लाइफ ना, कि गृहस्थ जीवन के अंदर में इट इज ओनली अलाउड बाय स्पिरिचुअल. फिर गृहस्थ के लाइफ में भी डिस्क्राइब करे कि धीरे 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 गृहस्थ ऑल्सो नीड्स टू राइज अप. तबे तो फिर नेक्स्ट स्टेज है वनप्रस्थ और संन्यास. अगर केवल ऑरेंज कपड़ा नहीं पहरा है बट
कल प्रभु डिस्कस करी सरा ना कि भक्तिविनोद ठाकुर भी बोले, प्रभुपाद जी बोले गृहस्थ ब्रह्मचारी. तो ब्रह्मचारी इज नॉट सिंपली बाय द ऑरेंज क्लॉथ. एक महाराज क्लास देता रहा, महाराज बोले वी वेयर कौन सी बोले saffron external and internal everything is white. Yes. Men should remain brahmacharis. So Prabhupada ji, yeah, good example. Prabhupada, example is Prabhupada instruction. All the women should get married for protection. They need protection. All the men should remain brahmachari. Devotee is confusing. Because brahmachari, everyone was thinking कि brahmachari मतलब सब saffron पहनी. नहीं, this is the vow of celibacy, which is so important. So for the non-devotees, we bring them, rise them up to grihastha, so they act within the marriage ashram. Then within the marriage ashram, by pure devotional service, Prabhupada ji बोले, when he meets a pure devotee, Sadguru के association में रहेगा, pure devotee के association में रहेगा, then within grihastha, then you have to rise in the level of, gradually over a period of time, you rise in the level of celibacy. And that is very important for deathlessness, for attaining the situation of deathlessness. So, Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande. Jai Shri Gaur. Hare